students, today we are going to do revision of grammar chapter number 2, that is noun. In the earlier lecture we had done chapter number 1. Now for the exam we are having grammar first chapter and second chapter, and in the junction book we are having unit number 1 and unit number 2, that is lesson number 1 and poem number 1, and unit number 2 is lesson number 2 and poem number 2. Good morning and the magic garden, and bird talk, and Nina and the sparrows. So these are the lessons that we are going to have for the exam. Now going back to grammar chapter 2, nouns. Now noun is a very simple lesson. We have done noun in standard first and second also, and today we are going to do noun again. What is the meaning of the word noun? It says a noun is a word used as a name of a person, animal, place or thing. Any naming words are called noun. कोई भी नाम होता है animal, place का, thing का, कोई भी naming word है उसको noun कहते हैं. Now in this chapter we are going to learn the different types of noun. First is common noun and proper noun. Now always remember that common noun are names of particular specific thing, particular person, and it is always written in capital letters. On the other hand, whatever is general, common to everything, name, place, animal or thing, is called common noun. For example, look over here, Jack and Jill, they are the names of a person. Jack and Jill, now both are children, so Jack and Jill is proper noun, common noun is children. Jack is a boy, so boy is a common noun. Jill is a girl, so girl is a common noun, and Jill is a proper noun. Okay, suppose Ganga is a river, so name of the river is Ganga, so Ganga is proper noun and river is common noun. Now name of the river is Rajgiri Hills, so name Rajgiri is proper noun, it begins with capital letter, and hill is a common noun. See, a proper noun is a special name given to. It is a particular specific name given to a person, place or thing. It always begins with a capital letter. And common noun is a common name given to a person, place. It is no specific. It is not any particular kind or anything. It is common. It does not begin with a capital letter. See, these examples are very important in the exam. We will have to do something like this only. We have to identify the common noun and identify the proper noun also. So see, Masha has a dog named Timmy. So Masha is a name and Timmy is the name of the dog. So dog is a common noun and these two are proper noun. See, English is my favorite subject. So English is specific, it is proper noun, begins with a capital letter, and subject is a common noun. See, same over here. Ansisi is a trickster. So Ansisi is a name. That is a proper noun. See, Nile is the longest river in the world. So river is a common noun and Nile is a proper noun. So this is the way, this is activity 1 and this is activity 2. One side is common noun, one side is proper noun. We have to match. For example, country. Now find out which is the country over here. India. So number 10, India. Correct? Language. Which language is given? Taj Mahal is a language? East is a language? No. Chinese is a language. So number 1. So this is how this exercise we have to do the match. Turn the page now. Activity 3. Again proper noun and common noun. Whatever is proper noun you have to write in the capital letters. And the common noun, as usual, small letters. End of the sentence full stop. And starting of the sentence proper noun, capital letters. Now the next type of noun is abstract noun. Abstract noun is nothing but our feelings, the qualities that a person has, the feelings that a person thinks. Now these abstract nouns are, we cannot see, we cannot hear, we cannot touch, we cannot smell, right? These are not things that we can see. They are the feelings, they are the qualities, the emotions that we feel inside. Such words are called as abstract nouns. See, in this box, there are 2 boxes given. One is feelings and one is qualities.
So feeling is happiness, sad. Qualities is honesty. Yeah, which other qualities do you come to know? Courage, right? Honesty. So these are abstract nouns. See, look page over here. Activity number 4. Circle the abstract noun. Whichever is the feeling, whichever is the uh, quality that we have to circle. Courage, honesty. Yes, we cannot see these things. Friendship, fun, freedom. Children, yes, we can see. Trees, we can see. Animals, we can see. So these are not abstract nouns. Abstract nouns are our feelings, our qualities that we possess, right? And these are things that we cannot see by our naked eyes. Now, activity number 5. See, we have to underline the abstract nouns in the sentences. Which are the abstract nouns? Honesty, wisdom, patience, love. Can we see love? We can only feel, no? Can we see patience? कि हाँ ये patient है? No, it is a feeling. हमें उसको दिखाई नहीं देती, हम उसको टच नहीं कर सकते. These are only our innermost feelings. Right, students? Cleanliness, forgiveness. हम forgiveness को देख सकते हैं? हम forgiveness को टच कर सकते हैं? नहीं, हम उसको खाली फील कर सकते हैं. फिर एंजाइटी. हम एंजाइटी को कभी देखा है आप लोगों ने स्टूडेंट्स? नो, हम खाली उसको फील कर सकते हैं. इसके लिए दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके स्टूडेंट्स, चलो टर्न द पेज. पेज नंबर 18. मटीरियल नाउन. अभी देखो यहाँ पे व्हाट इज अ मटीरियल नाउन? The material or the substances, ingredients for which things are made is called material noun. All these material nouns are known as material nouns. Example, flour, gold, wood. जिससे भी कोई वस्तु बनती है, जो हम खाने में डालते हैं, ingredients. कोई भी substance, कोई भी वस्तु से कोई वस्तु बनती है, सामान से कुछ वस्तु बनती है, उसको material noun बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेबल किससे बनता है? वुड. फ्रॉक किससे बनती है? कॉटन ड्रेस. ठीक है. घड़ियाल किससे बनती है? चाहे वो स्टील की हो, मेटल की हो. करेक्ट. तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लावर, तो ब्रेड या रोटी किससे बनाते हैं मम्मी? फ्लावर से बनाते हैं. ओके. तो ये मटीरियल नाउन्स होते हैं. अभी सम नाउन्स कैन बी यूज बोथ एज मटीरियल एंड कॉमन नाउन. The boy played on the sand. तो sand कॉमन नाउन है और ये मटीरियल भी है, क्योंकि sand से हम कैसल बनाते हैं, राइट? ठीक है. The boy's castle. तो देखिए, कैसल हम बनाते हैं ना, मटीरियल नाउन. अभी pour me some milk in the glass. तो मिल्क कॉमन नाउन भी होता है. और योगर्ट इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दही, कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क. तो ये मटीरियल नाउन भी हो जाता है. क्लियर है इतना? ये बहुत ही ईजी है, सिंपल है स्टूडेंट्स. एक बार आप उसको एक बार रीड करेंगे टेक्स्ट बुक में तो अपने आप समझ में आएगा. करेक्ट. नाउ मटीरियल नाउन को इसमें हमको अंडरलाइन करना है. आई वेयर क्लोथ्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क. तो कपड़ा किससे बना है? कौन सा मटीरियल है? कॉटन एंड सिल्क. लिया इज एलर्जेटिक टू ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर. तो सिल्वर एक ऑर्नामेंट है. वो ऑर्नामेंट कौन से ज्वेल से बना है? तो सिल्वर से बनाया है. चलो सी दिस एक्सरसाइज. एम्परर अकबर आस्क्ड टू सिट ऑन द मार्बल थ्रोन. कौन से थ्रोन से बना था? मटीरियल कौन सा था? मार्बल. इन जापान हाउसेज आर मेड ऑफ वुड. तो कहाँ से बनते हैं हाउसेज? कौन से मटीरियल से? तो वुड. नोबडी बिलीव दैट द मॉडल वॉज मेड ऑफ ओल्ड पेपर. वो मॉडल कौन से मटीरियल से बनाया था? पेपर से. तो पेपर हो जाता है मटीरियल नाउन. इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके. देखिए, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. हमको यहाँ पे 5 सेंटेंस दिए हैं. यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप के नाउन्स है. इसके अंदर सब दिए गए हैं. माई नेम इज रीटा, आई एम अ टीचर. तो टीचर कॉमन नाउन है, इसके लिए CN लिखा है हमने. और रीटा प्रॉपर नाउन है, इसके लिए PN लिखा है. और रीटा देखो कैपिटल लेटर में शुरू होता है ना बच्चों. ध्यान से देखो ये एक्सरसाइज. दिस डॉग इज ब्रेव. तो डॉग कॉमन नाउन है, इसके लिए हमने CN लिखा है. और ब्रेव है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वो ब्रेव है, वो हमको दिखता है? हम उसको फील कर सकते हैं? नहीं, वो हमारी फीलिंग है. ही चेस द रॉबर्स अवे. तो रॉबर्स कॉमन नाउन.
आई लाइक ड्रेस मेड ऑफ कॉटन, तो कॉटन मटीरियल नाउन है तो एम एन, ड्रेस कॉमन नाउन है तो सी एन। अदिति स्टडीज इन सेंट मैरी स्कूल, तो अदिति और सेंट मैरी स्कूल प्रॉपर नाउन तो पी एन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नाम है ना, और स्कूल हो जाएगा कॉमन नेम। फिर चार्ली चैपलिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन ऑफ ऑल टाइम, चार्ली चैपलिन नाम है उसका तो प्रॉपर नाउन, और कॉमेडियंस हो जाएगा कॉमन नाउन। इतना क्लियर है बच्चों? प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। ओके, नेक्स्ट है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये सब नाम से ही हमको पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या। जो हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जो हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल हो जाता है। क्लियर है इतना? देखिए, जब एड हाउ मच एंड हाउ मेनी बिफोर द नाउन, हमें काउंटेबल या अनकाउंटेबल कैसे पता चलेगा? हाउ मच और हाउ मेनी उसको ऐड करना है आगे, तो ही हमको पता चलेगा। If you get the answer to the question how much, the noun is uncountable. अगर how much का आंसर मिलता है ना तो वो uncountable होता है। अगर हमको आंसर मिलता है how many तो वो countable हो जाता है। ये दो वस्तु बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखना। how much है तो uncountable, how many है तो countable। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, ये लास्ट एक्सरसाइज है, हम देख लेते हैं इसके। टिक द अनकाउंटेबल, तो सैंड अनकाउंटेबल, टिक किया। गोल्ड अनकाउंटेबल, म्यूजिक अनकाउंटेबल, डार्कनेस अनकाउंटेबल, नॉलेज अनकाउंटेबल। क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं कि कितना नॉलेज भर भर के है हमारे पास? नहीं। क्या हम डार्कनेस को काउंट कर सकते हैं कि 5 kgs डार्कनेस है, कि 4 kgs डार्कनेस है? हम म्यूजिक को काउंट कर सकते हैं कि कितने म्यूजिक है? नो, इसके लिए वो अनकाउंटेबल। और काउंटेबल में देखिए चेयर, हम चेयर को काउंट कर सकते हैं कितनी चेयर्स हैं? ओके फाइन। हम ड्रेस को काउंट कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास 5 ड्रेस है, 6 ड्रेस है, ठीक है। हम ट्रीज को काउंट कर सकते हैं, कितनी सारी ट्रीज है जंगल के अंदर। कप देखिए, कप को हम काउंट कर सकते हैं, 5 कप्स, 6 कप्स। तो ये क्लियर है बच्चों? एक बार रीड करना उसको तो हमें उसका आइडिया आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं? ऑनेस्टी, सैंड, दे आर मेनली सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो एब्स्ट्रैक्ट होता है बच्चों, हम उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और काउंटेबल होता है कि हम उसको काउंट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में होता है, एक से ज्यादा होता है ना। तो डॉग, कैट्स, बुक, चर्च, बॉय, ये सारे काउंटेबल्स हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज में देखिए हाउ मच और हाउ मेनी हमको लिखना है। हाउ मेनी आएगा तो काउंटेबल आएगा, और हाउ मच आएगा तो वो है अनकाउंटेबल। ओके, देखिए ये समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। व्हाट इज अ नाउन? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग, है ना, पर्सन, तो वो हो जाता है कैपिटल लेटर में होता है तो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। हमेशा वो कोई स्पेशल नेम होता है। और कॉमन नाउन से हमें पता चलता है कि वो कॉमन है किसी भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग को, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, और वो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता। इतना क्लियर है स्टूडेंट? ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमारी फीलिंग है, हमारी जो क्वालिटीज है वो हमें दिखती नहीं है। और मटेरियल नाउन क्या है? जो भी कोई मटेरियल होता है, कोई भी सब्सटेंसेस होता है, कोई भी इंग्रेडिएंट्स होता है जिससे वो वस्तु बनती है। और काउंटेबल्स है वो जो हम काउंट कर सकते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। काउंटेबल है तो कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? हाउ मेनी। और अनकाउंटेबल है जो हम उसको काउंट नहीं कर सकते और वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और उसमें हम क्या पूछेंगे? अनकाउंटेबल में हम कौन सा पूछेंगे? हाउ मच। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमेशा एक बार रीड करना होमवर्क के लिए, और मैं इसकी एक्सरसाइज की पीडीएफ भेज देती हूँ, जिसका भी वर्क इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर देना। और ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार फिर से टेक्स्ट बुक में से उसको लर्न कर देना, ठीक है। मैं सिलेबस फिर से बता रही हूँ। यूनिट 1 एंड 2, यानी कि यूनिट 1 में लेसन नंबर 1 और लेसन पोएम नंबर 1, और यूनिट 2 में पोएम नंबर 2 और लेसन नंबर 2, और ग्रामर के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2।
इतना क्लियर है बच्चों? अच्छे से प्रिपेयर होना है एग्जाम के लिए, ठीक है? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।